Hello everyone, welcome to my class. Today we are going to discuss rational numbers and its decimal expansion. Before starting this, we will revise rational number. What is rational number? A number is said to be a rational number when we can represent it in the form of p by q, where pq is element of z and q is not equal to 0. You have already learnt it. Got it? We can represent rational numbers into decimal numbers. Right? So we can represent rational numbers into decimal numbers. For example, we can represent 1 by 2. This one is 1 by 2. 1 by 2 is a rational number and it is in the form of p by q, where p is 1 and q is 2. That means numerator is 1 and denominator is 2. We can convert this form into decimal form. That means 1 by 2 equal to 0.5. How can we convert it? We can convert it in the process of long division method, what we have learned in previous classes. Got it? And we can convert 2 by 5 also in the form of decimal. 2 by 5 equal to 0.4. 3 by 8 equal to 0.375, 1 by 3 equal to 0.33333 equal to 0.3 का bar, 3 by 7 equal to 0.428571, 428571 equal to 0.428571 का bar. Got it? So how can we convert it? I can explain. I am explaining you. For example, we can convert 1 by 2 into decimal. 1 by 2 means 1 is divided by 2. So when I divide 1 by 2, I can get 2 zeros are 0. So 1. Next, I put decimal point. When I put decimal points, then we add 0 to remainder. Got it? Next, 2 5s are 10 and the remainder is 0. That means 0.5 is our quotient and this one is the answer. So 1 by 2 equal to 0.5. Like this, we can convert 2 by 5 2 by 5 means we divide 2 by 5. So 5 zeros are 0. So remainder is 2. Next, I put decimal point. After putting decimal point, I put 0 on remainder. That means 20. 5 4 are 20. Got it? So we can convert 1 by 2 into 0.5, 2 by 5 into 0.4, like this, 3 by 8 into 0.375. Got it? Next one. We can convert 1 by 3 into 0.33333 equal to 0.3 का power. Like this. When 1 is divided by 3, we get 3 zeros are 0, 1 remainder. When I put decimal point, then I have to put 0 on remainder, 10. 3 3s are 9. My remainder is next 1. In the next step also I put 0. ये कंप्लीट नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा 3 3 3 3 3 इन्फिनिटी तक। गट इट? तो हम यहाँ पे देखिए कि ये नंबर
कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, ये मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। ये सब टर्मिनेट हो गया, दीज आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ पे हम देखिए कि ये सब टर्मिनेट हो जा रहा है, तो ये सब है टर्मिनेटिंग डेसिमल। पर हम देखें कि ये 1/3 एंड 3/7 टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेट तो नहीं हो रहे बट ये लोग रिपीट हो रहे हैं, गट इट? तो ये रिपीट हो रहा है, मतलब 3 ही रिपीट हो रहा है। तो नेक्स्ट वाला भी अगर मैं करूँगा तो ये 428571 रिपीट होगा, 428571, 428571, 428571, ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि हम रेशनल नंबर को दो तरीके से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। वन इज टर्मिनेटिंग एंड अदर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। गॉट इट? So these two are non-terminating recurring decimal. These are non-terminating recurring decimal. Got it? So हम रियल नंबर, रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल बाय द प्रोसेस ऑफ लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड ना करके हम कैसे बोल सकते हैं, हम इस चैप्टर में अभी पढ़ेंगे। सपोज 2/10 एक रेशनल नंबर लिया, देन मैं क्या करूंगा, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। क्या करूंगा? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, टू इंटू 5। दिस वन इज 2/10 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका वैल्यू है 0.2, जो कि हमें पहले से पता है 2/10 टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नेक्स्ट वन 3/8 भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जो हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, वन बाय 5 भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जो कि हम कर चुके हैं पहले से। तो देखो, ये सब में एक नोटिस करो, ये सब में नोटिस करो कि जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 है या 5 है या दोनों है। आइदर 2 है या 5 है या दोनों है, तो तब टर्मिनेटिंग होगा। चलो अच्छे से सुनो कि एक रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो फैक्टर निकलेगा वो 2 होगा या 5 होगा या बोथ होंगे, 2 एंड 5 दोनों रहेंगे, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट होगा। इसके अलावा कोई भी नंबर होगा तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट नहीं होगा। जो हम ऑलरेडी एग्जाम्पल कर चुके हैं, उसका एक एग्जाम्पल दे देता हूं। देखो, ये वाला टर्मिनेटिंग है क्या? नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है।
तो यहाँ पे 2 प्रेजेंट नहीं है या 5 भी प्रेजेंट नहीं है या दोनों प्रेजेंट नहीं है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड ना करके भी बोल सकते हैं ये मेथड में हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, देखेंगे फैक्टर में अगर 2 है या 5 है या दोनों है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट होगा। अगर इसके अलावा कुछ भी है तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। समझ में आया? इतना ही है, तो लिख लो let x equal to p by q be a rational number such that so listen, let x equal to p by q is a rational number, p a rational number such that the prime factorization of q का prime factorization is of the form 2 to the n into 5 to the n। that means वो उसका prime factorization करने के बाद 2 का फैक्टर आना चाहिए और 5 का फैक्टर आना चाहिए या दोनों आना चाहिए। where n and m are non-negative integers, जहाँ पे n and m नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, उसका पावर जो है नॉन नेगेटिव होना चाहिए। देन x हैज ए डेसिमल एक्सपेंशन व्हिच टर्मिनेट्स। देखो यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि 2 to the n 5 to the m में कन्वर्ट करना है। आप तो बोले हैं कि 2 का होना चाहिए या 5 का होना चाहिए या दोनों होना चाहिए। जब सिंगल होंगे तो 2 to the n 5 to the n कैसे कन्वर्ट हो गया है, तो मैं एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ। 3/8 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3/2 है। ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं? टर्मिनेटिंग है। तो हम ऑलवेज इसे 2 to the n to 5 to the n में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? मैं यहाँ पे अगर 5 to the 3 दोनों में मल्टीप्लाई 5 to the 3 and 5 to the 3 दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। गॉट इट? सो तो देखो 3/8 में 5 प्रेजेंट नहीं था, बट मैं दोनों ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 to the 3 मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 and 5 के हिसाब से कन्वर्ट हो गए कि नहीं? इसलिए मैं बोला था कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 and 5 ऑलवेज होंगे। कहाँ पे अगर 2 ही निकला या कहाँ पे अगर 5 ही निकला और कहाँ पे दोनों भी हो सकता है।
तो ओनली 2 होने से भी टर्मिनेटिंग होगा, ओनली 5 होने से भी टर्मिनेटिंग होगा, 2 और 5 बोथ होने से भी टर्मिनेटिंग होगा। इसके अलावा अगर कोई भी वहाँ पे फैक्टर होगा तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। उसके अलावा ये दोनों प्रेजेंट रहेंगे, उसके अलावा अगर 3 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और वहाँ पे अगर आ जाएगा और उसके अलावा और कुछ भी आ जाएगा तो वहाँ पे वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। गॉट इट? तो इस वीडियो में इतना ही। तो अभी आप लास्ट चैप्टर कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप चेक करेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके चेक कर देंगे कि 2 और 5 है तो टर्मिनेटिंग है, तो 2 और 5 नहीं है तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। गॉट इट? देन आपको इरेशनल नंबर के बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ। तो इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कर लिए। इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होता है? देखो, रेशनल नंबर में डेसिमल एक्सपेंशन क्या हुआ? टर्मिनेटिंग हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हुआ। अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिकरिंग होगा तो वो हो जाएगा इरेशनल नंबर। मतलब टर्मिनेट नहीं होगा और रिपीटेशन भी नहीं होगा तो उसे हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। तो कुछ डेसिमल्स ऐसे बता देता हूं आपको। देखो वहां पे डेसिमल नंबर में लिखा 0.37854329615432 तो यहाँ पे कुछ रिपीटेशन आया है क्या? कोई भी रिपीटेशन नहीं है यहाँ पे। और एंड हुआ है क्या? नहीं हुआ है। सो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स और इन्हें ही हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। दिस वन इज इरेशनल। पाई इज आल्सो एन इरेशनल नंबर। यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पाई इक्वल टू 22/7 तो ये इरेशनल नंबर कैसे हुआ? पाई इक्वल टू बच्चे सोचते हैं कि पाई इक्वल टू 22/7 है और ये तो p/q फॉर्म में है, q इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर्म में है, तो एक इरेशनल नंबर होना चाहिए। तो एक इरेशनल नंबर कैसे हुआ? पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है, इसका एक एप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ये एप्रोक्सीमेट वैल्यू है 22/7। दैट्स व्हाई पाई इज एन इरेशनल नंबर व्हेयर 22/7 इज ए रेशनल नंबर। 22/7 एक रेशनल नंबर है बट पाई इरेशनल नंबर है। व्हाई? बिकॉज 22/7 इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई। गॉट इट? तो जिसका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स होगा वो इरेशनल नंबर्स होंगे। तो समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आइदर टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। अगर इरेशनल नंबर को कन्वर्ट करेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा। और वहां पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट भी समझे कि पाई एक इरेशनल नंबर है। तो आपका रियल नंबर क्लास 10 रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया और भी आप हर कोई क्वेश्चन का आंसर आराम से कर सकते हैं। थैंक यू।